Morning, my friend. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter 5 when people rebel. In this chapter we will try to understand about the history of revolt 1857 and after. My dear student, as you know that we had read this chapter and as you know also that we had discussed a lot about all important matters and topics of this chapter. हमने इन सारी चीज़ों पर विस्तार से बातें की. आज एक बार फिर हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को ध्यान देंगे which is very important for you for your exam. As you know that your unit test 2 exam is at hand, so you have to do hard work. Okay, let us come your chapter in SST. This is chapter 5 when people rebel and 1857 and after. As you know that the previous chapter we had discussed about that the condition of the peasants, zamindar and the rayat and the common people. What happened with them? Which type of problem they faced during that time, during the colonial era? My dear student, a picture front of you where you had seen or you are observing that it is the very clear in the picture. इस पिक्चर को आप देखिए. What you have seen in this picture? In the picture, you had seen that some people who quarreled with each other, and you had seen there some dresses is different, and some they fought with the local equipments. उनके पास सीएट्स हैं, उनके पास मस्केट्स नहीं है, भाले हैं, और फिर कई लोगों की डेड बॉडी भी गिरी हुई है. What you had seen having seen there? एक कल्पना, एक इमेजिनेशन जो आपके दिमाग में आएगी. और बैक साइड देखिए, इस पूरे जो पेंटिंग्स है उसके पीछे देखिए एक फोर्ट नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है. What it show? It show that in the revolt, the Mughal emperor also involved against British colonial rule. Okay, my dear student, we will see and we will discuss one by one all these points. क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर पॉलिसीज क्या क्या थी और ये पॉलिसीज कैसे बदली. अब पॉलिसीज एंड द पीपल. पॉलिसीज एंड द पीपल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि कहता है कि इन द प्रीवियस चैप्टर you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people, kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers, were all affected in the different ways by the British ruler. You have also seen how people resist policies and the action that harm their interest or go against their sentiments. It is the very interesting matter. Here the counted the name, एक एक का नाम काउंट करा है. किसका नाम काउंट करता है? कहता है आप अगर देखें तो my dear student, if you will see what the since the mid 18th century, the Nawab, since the mid 18th century, the Nawab lose their power and the policies and the people. You have to connect each other. दोनों को एक साथ कनेक्ट करिए. क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए पीपुल में कौन से किंग्स, क्वीन, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल्स, सोल्जर्स, कह रहा हर वो चीज़ चाहे वो छोटा हो
चाहे वो बड़ा हो, समाज का हर तबका ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से प्रभावित था, ब्रिटिशर्स से प्रभावित था। अब बात करते हैं नवाब्स लूज देयर पावर। जो नवाब्स थे, जो शासक थे, उन्होंने अपनी शक्तियों को धीरे धीरे खोना शुरू कर दिया। कैसे? एज यू रिमेंबर दैट आई हैड ऑलरेडी taught you that what is the meaning of subsidiary alliance and what is meaning of doctrine of lapse. In those situations, first let us discuss the meaning of subsidiary alliance. Subsidiary alliance के बारे में बात करते हैं। क्या था subsidiary alliance? तो कहता है कि subsidiary alliance 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा स्टार्ट की गई एक ऐसी पॉलिसी थी। Subsidiary alliance was started by Lord Wellesley in 1799. Is the policy what? To control the local rulers and their territory with very clever way. कैसे, कितनी चालाकी के साथ। क्या था subsidiary alliance? Second point, in this alliance, in this system, subsidiary alliance system, a resident who was appointed by the British Empire in the court of the local rulers. It is the responsibility of the British resident that he provide peace, security and protection for the local rulers. And here it is very interesting matter which you have to know, that the expenses of the residents' army had to paid by local rulers. My dear student, this is the interesting topic. On the basis of that, you can say that you can easily understand that what is the role of Nawabs lose their power. नवाब ने अपने पावर को कैसे खो दिया। अब देखते हैं, बातें करते हैं। कहता है कि नवाब्स लूज देयर पावर सिंस द मिड 19th century. नवाब्स एंड द राजाज हैड सीन देयर पावर erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents had been stationed in many courts. The freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and the territories taken away by state. Many ruling families tried to negotiate with the company and protect their interest. For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as heir to the kingdom after the death of her husband. Here you have to understand that every and each rulers, they had their own interest. Even after some time they became the part of the British Empire. Even after, I mean to say that during revolt, they became the part of the rebellion also. Their state, it became part of the British Empire. रिवोल्ट के बाद उनके साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिए गए। साथ ही साथ उनका जो एरिया था, उनका जो क्षेत्र था, वो तो मिला ही लिया गया। बाद में ये लोग, जब इनकी बातें नहीं मानी गई, तो ये लोग रिबेलियन के साथ मर्ज कर लिए, मिला लिए अपने। कहता है मेनी रूलिंग फैमिलीज माइंड इट एंड प्लीज माइनटली रीड दिस लाइन्स। कहता है मेनी रूलिंग फैमिलीज ट्राई टू निगोशिएट विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर व्हाट इंटरेस्ट। कई सारे राजा के परिवार अपने इंटरेस्ट के लिए कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे थे। एग्जाम्पल के रूप में रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेता है।
कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके एडॉप्टेड सन को उनके लीगल सन के उनके वैध सक्सेसर के रूप में एडॉप्ट कर ले उनके पति की मृत्यु के बाद। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया और फिर रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, अपने को रिविलियन के साथ मिलकर के अंग्रेजों के साथ विद्रोह किया। एंड देन आफ्टर व्हाट हैपेंड, देन आफ्टर फाइनली देयर टेरिटरी दैट वाज मर्ज इन द ब्रिटिश एम्पायर। द नेक्स्ट लाइन, next sentence, it is also clear that the Nana Sahab, the adopted son of the Peshwa Bajirao II, Peshwa Bajirao II pleaded that he be given his father's pension, with the latter died. However, the company, confident of its the superiority and the military powers torn down the pleas. अब नाना साहब क्या कह रहे थे, नाना साहब क्या बोल रहे थे? नाना साहब की डिमांड थी कि जो लोग मेरे पिता की मृत्यु के बाद, पेशवा बाजीराव द्वितीय के एडॉप्टेड सन थे नाना साहब ने कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। उनके पिता के मरने के बाद जो पेंशन उसके पिता को मिलती थी वो पेंशन ट्रांसफ़र होकर नाना साहब को मिलने लगे। ये डिमांड थी नाना साहब की। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत की नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। ब्रिटिशर्स ने डिनाइड व्हाट, Britishers they denied these all type of pleas. कहता the company confident of its superiority and the military powers torn down their pleas, torn down these all pleas. सभी प्रकार के जो ये प्लीज थे, सभी प्रकार के जो समझौते थे, इनको कंपनी प्रशासन ने क्या किया, डिनाई कर दिया। और तब the company even began to plan how to bring the Mughals dynasty to an end. कंपनी प्रशासन अब इस बात को ध्यान दे रही थी। अगर उसके पहले देखें तो एक स्टेट की और बात कर लेते हैं, अवध की। कहता है अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरी टू बी अनेक्स्ड इन 1801। अवध एक अंतिम टेरिटरी थी जिसको अनेक्स्ट करना बाकी था। अवध was one of the last territory to be annexed in 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh in 1856. Mind it, and please note it down what I am telling you and what author want to inform you. author कहता है कि अवध के ऊपर सब्सिडरी अलायंस क्या की गई, इम्पोज कर दी गई। कब? 1856 में। तो सब्सिडरी अलायंस, आई थिंक देयर इज नो नीड टू अगेन, आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन अबाउट सब्सिडरी अलायंस, बिकॉज द मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू दैट लॉर्ड वेलेस्ली स्टार्टेड दिस alliance, this system in 1799. According to that, the British resident appointed in the local rulers court and the whole protection, security, this type of all act done by these residents, and local rulers had to pay. आपको इसके बदले लोकल रूलर्स को क्या करना पड़ा था, पे करना पड़ता था। दीज आर सब्सिडरी अलायंस। तो कहते हैं अवध 1856 में सब्सिडरी अलायंस में मिला दिया, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू अनेक्स कर लिया गया, मिला लिया गया। तो कहता है कि कब, कहता है अवध वाज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू बी अनेक्स्ड इन 1801. A subsidiary alliance was imposed on Awadh and in 1856.
it was taken over, the Governor General Dalhousie declared that the territory was being the misgoverned and the British rule was needed to ensure the proper administration. How strange! According to Subsidiary Alliance, that the administration, peace and security that was all controlled by British resident who was appointed by the British Empire, and here just opposite happened. In 1856, Governor General Lord Dalhousie, who blamed that the Awadh of Nawab of Awadh, he was unable to control the administration. So that's why it is very important to merge the state in the British Empire. ये आरोप लगाया गया किसके ऊपर? ये आरोप लगाया गया इस अवध के नवाब के ऊपर। आप कल्पना करिए, यू हैव टू क्या करना है आपको सोचना है, यू हैव टू एज्यूम, यू हैव टू इमेजिन दैट व्हाट दे आर सेइंग, क्या कह रहे थे वो, व्हाट दे वाज सेइंग दैट कि आपके यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके यहाँ शांति सही से नहीं है, इसलिए हम आपका राज्य क्या करेंगे, अब ब्रिटिश एम्पायर में मिला लेंगे। लेकिन वहाँ पे आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने आपसे कहा भी, आपके बुक में भी लिखा है कि रेजिडेंट की ये जिम्मेदारी होती थी वो उस राज्य की शांति व्यवस्था को स्थापित करे और उस राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली फंक्शन कराए, रेगुलेट कराए। It means it is the duty of resident that what? The set peace and security, good administrative structure in their states. But what happened here? There Lord Dalhousie claimed कि अवध इस लायक नहीं है कि उसे एक राज्य का दर्जा दिया जाए, और उसने अवध को क्या किया, कुप्रशासन का आरोप लगा करके कि अच्छा प्रशासन नहीं चला रहे हैं लोग, तो कुप्रशासन का आरोप लगा करके अवध को अपने राज्य में मिला लिया। अब कहता है द कंपनी इवन बिगेन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कंपनी अब प्लान करने लगी किस तरीके से मुगल डायनेस्टी को भारत से हटा दिया जाए, कैसे हटाया जाए, इसके लिए क्या प्लान होगा। तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि कंपनी ने मुगलों के प्रशासन को ख़त्म करने के लिए एक पूरी योजना बना ली। कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी किए गए जो सिक्के थे उस पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। ये मुगल बादशाह कौन थे? लास्ट मुगल एम्परर वाज बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह सेकेंड। ओके, तो कहता है कि इन्होंने बड़ी चतुराई के साथ अंग्रेजों ने काम किया, उन्होंने सिक्कों के ऊपर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि लाल किले कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले को छोड़ देना चाहिए। डलहौजी ने कहा कि जो बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। और 1856 में गवर्नर कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। कितना महत्वपूर्ण बात है कि ये वही अंग्रेज थे जो मुगल बादशाहों से अपने शासन को स्थापित करने के लिए याचना कर रहे थे। दीज आर ऑल दे आस्क्ड फॉर द specific right for the trade in the territory of the Mughal emperor. But here what happened? The total scenario that had totally changed. परिस्थितियां बदल गई, घटनाएं चेंज हो रही थी।
अब ये लोग मुगल बादशाह को ही रास्ते से हटाने की सोच रहे थे, और बड़ी चतुराई के साथ। कैसे? हाउ? तो कहते हैं कि द कंपनी विल बिगिन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। देयर वर 3 प्लान्स। द प्लान्स, it was very important for the British Empire that with the help of these plans they kicked out Mughal emperor. कैसे? कहता है कि in 1849 the Governor General Lord Dalhousie announced that the death of Bahadur Shah Zafar, the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and given another place in Delhi to reside in. उनको रहने के लिए reside in, कहीं भी। कहता है कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य लाल किले में नहीं रह सकता है, उन्हें दिल्ली में रहने के लिए दूसरी जगह पर स्थापित किया जाएगा। First plan. Second plan, in 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as a king. They would just be called prince. Lord Canning ने कहा। Lord Canning was Governor General of India during revolt time. He announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, no one descendant be a successor as a Mughal emperor. कोई भी मुगल एम्परर के उत्तराधिकारी के रूप में, मुगल एम्परर के रूप में दोबारा रेड फोर्ट में नहीं रहेगा। उसे राजा, उसे बादशाह या मुगल सम्राट की उपाधि नहीं दी जाएगी, उन्हें सिर्फ प्रिंस माना जाएगा, राजकुमार कहा जाएगा। कहते हैं द पीजेंट्स एंड द सिपाहीज इन द कंट्री साइड्स, पीजेंट्स एंड जमींदार। अब ये तो परिस्थितियां बदल रही थी, राजाओं के साथ इंसल्ट हो रहे थे। लॉर्ड एमहर्स्ट कहता है कि मैं नजर नहीं दूंगा। व्हाट डू यू मीन बाय नजर? जब राजा कोर्ट में आते थे मुगल एम्परर, तो सभी को खड़े होना पड़ता था उनके सम्मान में। एमहर्स्ट ने कहा कि नो, आई विल नॉट, मैं आपको नहीं दूंगा ये सुविधाएं। ठीक ऐसे ही मुगल एम्परर के साथ साथ उन राजाओं की अपमान किए गए, बेइज्जती की गई। क्या क्या हुआ उनके साथ? माय डियर स्टूडेंट, हियर द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक्चुअल प्रॉब्लम, द एक्चुअल प्रॉब्लम that was not the Mughal administration, even it was not the British administration also, but the act which was done by the British officials against Mughal emperor, that was very insulting. एक अपमानजनक तरीके से मुगल सम्राट के साथ काम किया गया। तो जब मुगल एम्परर के साथ इस तरह की व्यवस्था की गई, मुगल एम्परर के साथ इस तरह का अपमानजनक काम किए गए, मुगल एम्परर वाज द व्हाट आई एम टेलिंग यू कि वो उस समय का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था भारत का, हिंदुस्तान का। और यदि उसकी इंसल्ट की जा रही थी तो जनता को लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बादशाह की इंसल्ट की जा रही है। कहता है कि इवन 1803 से ही मुगल सम्राट, मुगल एम्परर ब्रिटिश संरक्षण में रहने लगे थे, ब्रिटिशर्स के कंट्रोलिंग में, ब्रिटिशर्स के छत्र छाया में वो लोग अपना जीवन जीने लगे थे। लेकिन तब उनका जो सम्मान था, उनकी मान मर्यादा थी, उसके दावे अंग्रेजों के द्वारा स्वीकृत थे। लेकिन धीरे धीरे मुगल एम्परर के सम्मान घटाए जाने लगे, कम किए गए।
अब कहता है कि सबसे पहले देखिए, कहता है गवर्नर जनरल को वो अपना प्रिय पुत्र और वफादार नौकर कहकर संबोधित करते थे। प्रिय पुत्र और वफादार नौकर। ब्रिटिश गवर्नर जनरल एमहस ने बादशाह को समझा दिया कि अब आपकी बादशाहत केवल नाम मात्र की है, और दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट ने नजर देते समय खड़े होने से उसने इनकार कर दिया। That's what I'm telling you. That is also the insult. British Amherst, he clearly what? Told them that you are only namely king. You have no legal authority. Legal authority in the hand of British Empire. So that's why I will not. क्या करूँगा? मैं अपनी चेयर नहीं छोड़ूंगा, मैं खड़ा नहीं हूँगा। I will not stand. When you will enter in court, जब आप दरबार में आएंगे तो मैं नजर नहीं दूंगा। उसके बाद आकलैंड, जनरल आकलैंड ने बादशाह को अपने दावे और अपने अधिकार छोड़ने को कहा। उसने बादशाह को नज़र लेने, खिलत देने और दरबार करने से भी रोक लगा दी। आकलैंड एमहस से 2 कदम आगे। उसने कहा कि आप नज़र नहीं दे सकते, मतलब जब दरबार में आए तो लोग खड़े होते हैं, ये आप नहीं कर सकते। आप खिलात नहीं दे सकते। खिलात मतलब जो उपहार, गिफ्ट, वो चीज़ें आप नहीं दे सकते। Then after, next thing which is very important, उसने कहा कि अब आपको बादशाह के अपने सारे जो दावे हैं, जो अपने अधिकार हैं, उनको आपको छोड़ देना चाहिए। ये आपके एक्चुअल राइट्स अब नहीं रह गए। डलहौजी ने सम्राट को लाल किले से हटने के लिए ही कह दिया। बादशाह की उपाधि छोड़ देने और अपना उत्तराधिकारी नामजद करने की अधिकार को भी उसने ले लिया, उनसे छीन लिया। इन सभी घटनाओं से सभी लोग मुगल बादशाह के अपमान से नाराज हुए और उनकी बादशाहत को मिटाने के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट से बड़े ही खफा होते। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, जैसा कि मैंने जस्ट अब इसके ऊपरी पैराग्राफ में बात की, नवाब ऑफ अवध Wajid Ali Shah, he was very famous Nawab, but what happened with them? In February 1856 अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, जबकि अवध से अधिक अंग्रेजों का समर्थक और आज्ञाकारी राज्य कोई और था ही नहीं। अवध का चीफ कमिश्नर का क्षेत्र बना दिया गया। हेनरी लॉरेंस अवध के पहले चीफ कमिश्नर अपॉइंट किए गए। डलहौजी ने लीगल इलीगल वे से तमाम सारे देसी राज्यों को अपने राज्य में, ब्रिटिश एम्पायर में ला लिया। गोद लेने को उसने प्रोहिबिटेड कर दिया, निषेध कर दिया। उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में बड़े आसानी से मिला लिया। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव, जो नाना जी के नाम से पेशवा बाजीराव के दत्तक थे, हायर्ड सन थे नाना साहब, की पेंशन बंद कर दी। कर्नाटक, सूरत और तंजौर के राजाओं की जो टाइटल्स थी नवाब और राजा की, उसका उन्होंने अंत कर दिया। 1854 में डलहौजी ने जमींदारों एवं जागीरदारों की जांच के लिए इनाम कमीशन बैठाया और इस कमीशन ने 35,000 जागीरों की जांच की और 20,000 जागीरें जब्त कर ली, सीज कर दी। कंपनी की सेवा में भारतीयों को उच्च पदों पर भी नहीं रखा गया था। 1860 में सर सैयद अहमद ने घोषणा की कि विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण भारतीयों को प्रशासकीय तंत्र में प्रविष्ट न होने देना है। अंग्रेजों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुए, इन पूरी व्यवस्था को इस घटना ने झकझोर कर रख दिया। ये इसके पॉलिटिकल रीजंस थे। रिवोल्ट के पॉलिटिकल कारणों पे हम बात की। ये सारी घटनाएं क्या थी? एक राजनीतिक कारण है। These are all the political causes. That's why the revolt happened. The rulers, the king, the zamindars, they were exploited, direct or indirectly, by the British Empire. Their zamindari that was auctioned, their estate that was merged in British Empire on the basis of no legal successor, on the basis of presidential system,
on the basis of misadministration and these type of all. I counted the various name of the local states which was merged in the British Empire by Lord Dalhousie. Satara, Jaipur, Sambalpur, Baghat, Udaipur, Jhansi, Nagpur, Machedi, Bundi. There are so many types of states. बहुत सारे राज्यों को उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया. I think what happened with the peasants and Sipai? In the countrysides, the peasants and Jamidar resented in the high taxes and the greed methods of the revenue collections. Many failed to pay back their loans of the moneylenders and gradually lost the lands they had tilled up generation. Dear student, before start this topic, I would like to inform you the other important things which is very very important. क्या कि और भी क्या कारण थे रिवोल्ट के. अगर इकोनॉमिक रीजन की बात करें, आर्थिक कारणों पे बात करें, तो द पीजेंट्स, द रोल ऑफ पीजेंट्स, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक रीजन. आर्थिक कारण, ये आर्थिक कारणों से जुड़ा हुआ था. आर्थिक कारणों का महत्वपूर्ण अंग था. अगर आप पैराग्राफ को देखें, कहता है कि द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी आल्सो हैड रीजन फॉर द discontent. They were unhappy about the pay, allowances, conditions of the services, some of the new rules. Moreover, they violated their religious days. Many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and the caste. So when in 1824, the Sipahi were told go Burma by the sea routes of the fight for the company, they refused to follow the order through the agreed to go the land routes. They were severely punished, and since these issues did not die down, in 1856 the company passed a new law which stated that every new person who took up the employment in the company's army had agreed to service overseas if required. In this topic, we will also consider about the religious reason. We have discussed the political causes. Then after we will discuss the economical causes, religious causes and sudden action. क्या हुआ? इन सारे पॉइंट्स को हम इसमें बातें करेंगे, इन चीज़ों को हम देखेंगे. लेकिन जब आप इन चीज़ों को समझिए तो एक क्लियर व्यू आपके सामने आता है कि देयर वर नो ओनली वन रीजन बिकॉज ऑफ दैट रिवोल्ट हैपेंड. केवल एक कारण नहीं था रिवोल्ट के होने के बहुत सारे कारण. इन कारणों में सिर्फ हमने आज बात की पॉलिटिकल रीजन्स की. इकोनॉमिकल रीजन हमने शुरू किया. वी विल डिस्कस दीज रीजन्स, इकोनॉमिकल रीजन इन योर नेक्स्ट क्लास. ओके, गुड बाय एंड टेक केयर.